Let's get started with the IER part 3. We'll see what we'll do right now in this. Okay. We have seen the United UN and its organizations. And we also saw the places with news and the bilateral relations. Other important news, ठीक है. Let's see. Israel US Iran conflict. Recently Iran Defense Force launched करते एक Operation Rising Lion, a major strike against the Iranian nuclear infrastructure and ballistic missile capabilities. Israel ने करा ईरान के ऊपर. It's a attack by Israel on Iran का nuclear infrastructure. इसका ऑपरेशन नाम देता Operation Rising Lion. Key development of the conflict is that Israel strike, it followed a vote by IAEA Board of Governors, 35 members declaring Iran is breaching. ये हमने देखा कि ईरान जो अपना ब्रीच कर रहा है 1974 वाला agreement. So Israel activated its new aerial defense Barak Magen और lightning shield against the Iran's attack. ठीक है. It is a special version of Barak MX missile defense system जो कि built हुआ है to protect the navy ships from various aerial threats like drones, cruise missiles, ballistic missiles. ये complement करता है एरिया का existing system से Iron Dome, David slings and all others. ठीक है. Retaliation by Iran क्या होता है? Launch retaliation में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लॉन्च करा by Iran. This is by Iran. Operation Rising Lion by Israel on Iran. ठीक है. Then you have this क्या बोलते हैं participation of US आ गया अपना ऑपरेशन Midnight Hammer करके a series of precise air strike targeting 3 इन्होंने क्या किया 3 Iranian nuclear facility. Natanz, it's a primary uranium enrichment facility. Isfahan and Fordo. These are the 3 places जहाँ पे US ने strike करी है with under the operation Midnight Hammer. So implications क्या हैं of the Iran-Israel-US conflict? Threat to trade and energy security. ईरान का जो पार्लियामेंट है उसने प्रोवाइड करा है अप्रूवल to close the Strait of Hormuz and 35% of the global seaborne oil and 20% of the LNG pass through this strait. So ईरान ने बोला हम इस स्ट्रेट को ही बंद कर देंगे. Then disruption of the undersea cable infrastructure. Several high capacity routes like Europe, India gateways, flag, fiber optic link around the globe. ये सब हमारे हैं. Infrastructure and connectivity project. India's investment in project like Chabar Road, International North-South transport corridor, etc. for trade and connectivity to Afghan, Central Asia, Eurasia will be affected. Iran's missile attack on the Israel's Hafia port disrupted its role in the Mid East Europe corridor. ठीक है. इंडिया का ऑपरेशन सिंधु था to evacuate the Indian national from the conflict zone of Iran and Israel. यहाँ पे 3 ऑपरेशन की बात हुई है. पहला ऑपरेशन है कि इसराइल ने अटैक कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अंडर द ऑपरेशन राइजिंग लाइन. इन रिटेलिएशन ईरान जो है हैज़ अटैक द इसराइल अंडर द ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3. With this, the US came into picture and attacked 3 places of Iran, Natanz, Fordo, Isfahan. These are the 3 places of nuclear in Iran which got airstrike by US under the operation Midnight Hammer. India operation Sindhu कराता है to evacuate the Indian national from the conflicting zone. This is it. यहाँ पे अब हम देख लेते हैं positions. Okay. So this is your Iran. ठीक है. यहाँ पे इसराइल है आपका and तो क्या है यहाँ पे इसराइल इज़ सराउंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज़. ये हमने पहले ऊपर देख लिया कि इसराइल के सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन सी, ईरान की कौन सी है. बेसिकली यही है बस. ठीक है. Gaza Peace Summit. Recently, US and Egypt co-hosted the Gaza Peace Summit in Sharm el-Sheikh, Egypt. तो हमारा क्या हुआ है US और इजिप्ट ने कोहोस्ट करा गाज़ा पीस समिट इन द शर्म अल शेख इजिप्ट में टू एडवांस द पीस ऑफ गाज़ा
to advance the peace of Gaza, peace in Gaza and ओवरऑल स्टेबिलिटी इन मिडल ईस्ट, ठीक है, पीस को लेकर के। इस समिट के टाइम पे 4 सीज फायर मीडिएटर आए थे, यूएस, कतर, इजिप्ट एंड योर टर्की। Signed a declaration inaugurating the US 20-point peace plan or the Trump declaration for enduring the peace and prosperity. So these 4 people come into picture for the ceasefire as a ceasefire mediator. जो पीस प्लान था वो उसने डिक्लेयर करते, जो फ्यूचर डिस्प्यूट्स होंगे वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स या नेगोशिएशंस के थ्रू एंड नॉट थ्रू द फोर्स और प्रोएक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स। प्लान फॉर द हमास डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सुपरवाइज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, ठीक है। सो मैनी प्लान्स वर देयर। सो लॉन्ग टर्म ट्रम्प ने बोला 20 पॉइंट प्लान हमारा रहेगा, अभी नथिंग टू रिमेंबर। Importantly, 20-point plan of Gaza does not guarantee 2-state solutions or the creation of the state. यहाँ पे 20 प्लेस में भी इन्होंने 2-state solution की बात नहीं करी। इंडिया जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल है उन्होंने अटेंड करा था समिट को, अप्रिशिएट किया एफर्ट्स टुवर्ड द लास्टिंग पीस इन द रीजन। ओके, की माइलस्टोन देखते हैं। इंडिया इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट 1917 में सबसे पहले हुआ था बैलफोर डिक्लेरेशन। इसमें बोला था जो ब्रिटेन है वो कंट्रोल ले ले पैलेस्टीन का आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 एंड सपोर्ट करे जूइश होमलैंड इन पैलेस्टीन, ठीक है। 1947 में क्या था, यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान हुआ था, डिवाइड करता पैलेस्टीन को इनटू द सेपरेट जूइश एंड अरब स्टेट्स। जूस स्टेट अलग हो जाएगा एंड आपका अरब स्टेट अलग हो जाएगा। तो जेरूसलम था अंडर द इंटरनेशनल कंट्रोल उस टाइम पे। 67 में 60 डे वॉर होता है। इजराइल जो ऑक्यूपाई कर लेता है वेस्ट बैंक को, गाजा स्ट्रिप को, ईस्टर्न जेरूसलम को एंड सिनाई पेनिनसुला एंड गोलन हाइट्स को। उसके बाद 93 में हमारा ओस्लो अकॉर्ड आता है जिसमें हमने बोला कि जो ग्रांट है लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस का पैलेस्टीन को दे दिया गया इन द पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा में और वेस्ट बैंक में आपको पैलेस्टीन को सेल्फ गवर्नेंस का लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस का राइट दे दिया गया था ओस्लो अकॉर्ड में। 2006 में क्या होता है, हमास विन कर लेता है पैलेस्टीन का लेजिस्लेटिव इलेक्शन और उसकी वजह से क्या होता है, टेंशन होते फतह और हमास के बीच में। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड आता है जो कि नॉर्मलाइज करता है रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड अरब स्टेट। ये सब चल रहा था। नाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड। ओके, गाजा जो है एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में, ये आपका गाजा स्ट्रिप है, ठीक है। सो ये हमारा बॉर्डर करता है इजिप्ट साउथ से, इसके साउथ में इजिप्ट आ जाता है, साइड में इजराइल है ही, ऊपर में आपका कौन सा आता है, दिस इज इजराइल ओनली, ओके। सो इट बॉर्डर्स इजराइल ऑन द नॉर्थ एंड ईस्ट में एंड आपका साउथ वेस्ट में आपका इजिप्ट आ जाता है। यूएन ने ऑफिशियली डिक्लेयर करा है फमाइन इन द अगस्त 2025 एंड हाफ ऑफ द पीपल एट द रिस्क ऑफ स्टारवेशन ड्यू टू द इजराइल्स प्रोलॉन्ग ब्लॉकेड एंड रिस्ट्रिक्ट द एंट्री पोस्ट हमास अटैक ऑन इजराइल। सो इजराइल ने हमास ने अटैक करा, उसके बाद एंट्री क्लोज कर दी थी। ऑल्सो जो कि यहाँ पे अटैक्स हुए हैं उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे फमीन देखा गया, स्टार्वेशन हुआ है, हंगर स्टार्वेशन देखी गई है यहाँ पे। बस इंपॉर्टेंट प्लेसेस अफेक्टेड इन गाजा इज दीज आर द एरियाज, नॉट इम्पॉर्टेंट। वेस्ट बैंक क्या है, एक लैंडलॉक्ड रीजन है वेस्ट ऑफ द जॉर्डन में एंड ईस्ट ऑफ द इजराइल में। जॉर्डन के वेस्ट में और ईस्ट और इजराइल में वेस्ट बैंक आता है हमारा, ठीक है। टेरिटरी डिवाइडेड इन 3 फुली कंट्रोल बाय, एक तो इजराइल पूरा कंट्रोल करता है, एक दूसरा वाला पैलेस्टीन पूरा कंट्रोल करता है और एक जो है इन दोनों के बीच में शेयर करा गया है। सो ऐसे वेस्ट बैंक हमारा जो है तो वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक के ईस्ट में आपका जॉर्डन आता है एंड यूर हैव ईस्ट में इजराइल और ये है आपका वेस्ट बैंक, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट गोलन हाइट्स जो है बाउंडेड बाय द जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गलीलिया ऑन द वेस्ट, बाउंडेड बाय द आपका जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गलीलिया ऑन द वेस्ट एंड कंटेंशियस बिटवीन द इजराइल एंड सीरिया। सेनिंग पेनिनसुला में क्या था, लाइज बिटवीन द स्विस कनाल एंड गल्फ ऑफ काबा, बाउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ एंड साउथ सी, रेड सी साउथ, ठीक है। लाइज बिटवीन द स्विस कनाल, ठीक है, और गल्फ ऑफ अकाबा के बीच में सनाइंग पेनिनसुला हमारा आता है, बाउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी हमारा नॉर्थ में रहता है, उसके साउथ में हमारे रेड सी होते हैं, बीच में इफ यू कैन सी इट इन हियर, दिस इज़ योर रेड सी, दिस इज़ योर रेड सी, यहाँ पे सनाइंग पेनिनसुला हमारा पड़ता है, यहाँ पे आपकी मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे हो जाती है, रेड सी हमारी साउथ में हो जाती है, गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पे ही है, ओके। देन यू हैव जेरूसलम, ए एंशिएंट सिटी है जो कि अंदर पूरा होली कंट्रोल अंडर दी इजराइल। इंपॉर्टेंट 3 मेजर मोनेस्टिक रिलीजन, जूस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, मुस्लिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ये।
मोरांग एक्सिस क्या है? दिस ये जो एरिया कंसिस्ट मेनली ऑफ एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड बिटवीन द खान यूनिस, जो कि हमारा हमने देखा था वेस्ट बैंक नहीं सॉरी गाज़ा का एरिया है, ठीक है, एंड रफा and your stretches from the east to west across the Gaza Strip again, ठीक है. The name Morang means illegal Israel settlement that was established in the region in 1970 2005. So हमें क्या क्या याद रखना है इससे? Firstly there is like Gaza peace summit held, US Egypt was there, हुआ इजिप्ट में था, ठीक है. हमारे 4 सीज़फायर मीडिएटर्स आते हैं विच इज़ US इजिप्ट, इन दोनों ने तो करा, कतर और तुर्की इज़ ऑल्सो देयर. फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा सेटलमेंट नहीं होता, बट येस इट वाज. तो इससे रिलेटेड 1970 में बैल्फोर होता है, उससे पहले यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान आता है, 67 में 6 डे वॉर होता है. सो ये सब तो चल रहा है, ठीक है, ये सब तो चल रहा है कि हमारा पार्टीशन प्लान आया, 6 डे वॉर हुआ. बट उसके बाद क्या होता है कि ओस्लो अकॉर्ड आता है. ओस्लो अकॉर्ड में क्या बोला जाता है कि हमारा सेल्फ लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस पैलेस्टीन को दे देते वेस्ट बैंक और गाज़ा पे, ठीक है. देन यू गॉट दी हमास विन पैलेस्टीन, हमास आ गए, पैलेस्टीन लेजिस्लेटिव इलेक्शन जीत ले. फिर उसके बाद 2020 में अब्राहम अकॉर्ड आ जाता है, जो कि इसराइल और अरब स्टेट्स का नॉर्मलाइज कर देता है, ठीक है. सो अरब की जो कंट्रीज लाइक बहरीन एंड ऑल दे गेट कुछ साइन कर लेते हैं अपना इसराइल के साथ, एंड दे डेवलप सम रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस वहाँ पे बिल्ड हो जाते हैं. Palestine state recognized by the multiple nations. 4 Western nations हैं, United Kingdom, Canada, Portugal, Australia. इन्होंने 140 joined over 140 UN member states in recognizing the Palestine as a state. अच्छा, ये 4 हमारी कंट्रीज है वेस्टर्न नेशन जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो वाला these people जॉइन द 140 यूनियन मेंबर स्टेट जिन्होंने रिकोगनाइज करा है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट. ओके, रिकोगनाइजेशन ऑफ द स्टेट कैसा होता है? इंडिया ने रिकोगनाइज करा है पैलेस्टीन स्टेट इन 1988 इटसेल्फ. तो रिसेंटली इंडिया ने वोट करा इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंडोर्सिंग द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन पीसफुल सेटलमेंट एंड 2 स्टेट सोल्यूशन. ये हमारा आता है, ठीक है, 2 स्टेट सोल्यूशन पे अग्री करा है. आर्टिकल 1 1933 मॉन्टेवेरो कन्वेंशन का क्या बोलता है? ऑन द राइट ऑफ ड्यूटीज एंड ऑफ द स्टेट डिफाइनिंग द क्राइटेरिया फॉर द स्टेटहुड. स्टेटहुड को डिफाइन करने का क्राइटेरिया इस कन्वेंशन से आता है. बेसिकली जो परमानेंट पॉपुलेशन है डिफाइन करते हैं उस टेरिटरी को, गवर्नमेंट को, एंड कैपेसिटी टू एंटर इनटू द रिलेशन विद द अदर स्टेट. कि क्या आप ऐसी एक परमानेंट पॉपुलेशन होती है, डिफाइंड टेरिटरी होते हैं, गवर्नमेंट होती है आपके पास, जो कि उस दूसरे स्टेट के साथ आपके क्या रिलेशन रहेगा वो डिफाइन करते हैं. इफेक्ट ऑफ द स्टेट रिकोगनाइजेशन क्या होता है? अगर आप स्टेट रिकोगनाइज होता है, एक यहाँ पे आपके पास कैपेसिटी आ जाती है टू एंटर इनटू अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द अदर स्टेट. ए बी यू गेट द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द ट्रीटीज विद द अदर स्टेट. आपने डिप्लोमेटिक रिलेशन कर लिए, देन यू गॉट द ट्रीटी साइन, देन उसके बाद स्टेट इज एबल टू एंजॉय द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ इंटरनेशनल स्टेटहुड. इंटरनेशनल स्टेटहुड के राइट एंड प्रिविलेजेस भी आप एंजॉय करने लगता है. स्टेट कैन बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. पैलेस्टीन इज अ यूनाइटेड नेशन परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस एंड नॉट अ फुल मेंबर, ठीक है. इज़ अ UN परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट, फुल मेंबर नहीं है पैलेस्टीन जो अभी है, वो इज़ अ जस्ट एन एट द ऑब्जर्वर स्टेटस, ठीक है. ओनली स्टेट एंड गवर्नमेंट कैन रिकोगनाइज अ न्यू स्टेट. जो खुद स्टेट हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वही दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को रिकोगनाइज कर सकते हैं. यूनाइटेड नेशन जो है एंड नीदर बीइंग नीदर अ स्टेट नॉर अ गवर्नमेंट हैज़ नो अथॉरिटी. तो यूनाइटेड नेशन के पास अथॉरिटी नहीं, क्योंकि ना तो वो स्टेट ना ही वो आपका इज नॉदर अ स्टेट नॉर अ गवर्नमेंट, सो इट हैज़ नो अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज एनी अदर piece of land as a state or a government, ठीक है. यूनाइटेड नेशन कैन ओनली एडमिट अ न्यू स्टेट एज अ मेंबर एंड एक्सेप्ट द क्रेडेंशियल्स ऑफ दैट रिप्रेजेंटेटिव. तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. तो इसमें ओनली इफ एंड बहुत कुछ है कि बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स लाइक नीदर, तो ना तो वो स्टेट इज लाइक हैज़ नो अथॉरिटी, सो नो बहुत बड़ा आ जाता है. देन इट्स ओनली राइट्स में आ जाता है कि ओनली स्टेट एंड गवर्नमेंट कैन रिकोगनाइज अ स्टेट न्यू स्टेट. येस इट इज़. ओके, नाउ व्हाट, बस यही था. गिलोंग ट्रीटी अंडर ऑकस. ऑकस क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया, UK साइन अ बायलेटरल डिफेंस आपका कॉपरेशन
agreement, also known as Galileo Treaty. It's a defense bilateral defense cooperation agreement under the AUKUS Pillar 1 of the next. ठीक है, ये ट्रिटी में क्या हुआ था, इसको हमने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलेब्रेशन ट्रिटी भी बोला है. तो इसमें हमारा बेसिकली क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड हमारे सबमरीन पार्टनरशिप और कोलेब्रेशन की बात करी गई है. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इनेबल करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन ऑन डिज़ाइन, बिल्डिंग, ऑपरेशन, सस्टेनमेंट, डिस्पोजल ऑफ द SSN AUKUS सबमरीन्स एंड enable development of the resilient trilateral supply chain. ठीक है, it is in line with the international nuclear non-proliferation obligation and trilateral AUKUS naval clear propolis agreement. इस agreement के साथ AUKUS को देख लेते हैं. इसमें कौन कौन है, 1, 2 और 3 नाम में ही आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. सो 2021 में क्या होता है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के बीच में. ठीक है, एंड इसका पिलर 1 फोकस करता है डेवलपिंग अ शिप बिल्डिंग कैपेसिटी. इसमें क्या होता है, 3 नेशंस आता है इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रेलिया, एक्विजिशन ऑफ इट्स फर्स्ट SSN न्यूक्लियर पावर सबमरीन. पिलर 2 में फोकस करा जाता है जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द 8 एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज एरियाज एज AI एंड अदर. सो अगर हम देखें तो इट्स अबाउट योर पिलर 1, क्योंकि हमने यहाँ पे सबमरीन की बात करी. सो यहाँ पर शायद लिखा हुआ था दैट इट इज़ इन लाइन विद द पिलर 1. पता नहीं यार, सो आई थॉट आई सॉ. चलो नेक्स्ट, ये रहा ना पिलर 1, क्योंकि इट्स अ सबमरीन. चलो भाई, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC. इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ने हाईलाइट करा है जो IMEC है विल ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट बाय 30% एंड रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन टाइम बाय, टाइम को 40% कम कर देंगे, कॉस्ट को 30% कम कर देंगे, क्रिएटिंग सीमलेस ट्रेड लिंकेज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट. एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, फॉर्मलाइज करा जाता है बाय MOU साइन बिटवीन इंडिया, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, UAE एंड US एट द G20 समिट इन 2023 इन न्यू दिल्ली. स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये बाईपास करते हैं मैरीटाइम चौक पॉइंट्स लाइक स्विस कैनाल. तो एक हम ऐसी जगह करेंगे जिससे कि आपका 30% तक कॉस्ट कम हो जाएगी, 40% आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा. मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, मतलब कि अलग अलग मोड्स के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी आएगी. प्रोजेक्ट फॉर्मलाइज करा जाता किस किस के बीच में, ऐसे इंडिया, देन यू गॉट योर यूरोप, EU आ जाएगा, EU में फ्रांस आएगा, जर्मनी आएगा, इटली आएगा, देन यू गॉट दिस सऊदी अरेबिया, UAE, US, सॉरी, ठीक है, ये सब है. ग्रीस कहाँ से आ गया, EU में, आई एम सॉरी. ठीक है, तो ये हमारा IMEC का ये है, बस इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप 3 जगह से जाता हुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर है. ठीक है, ओके. नाउ इंडिया का इंडियन डायस्पोरा एक स्टैंडिंग कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर की. ठीक है, 2024 में उसने एक रिपोर्ट रिलीज़ करेगी इंडियन डायस्पोरा ओवरसी. मतलब लॉजिक से समझ जाओ, डायस्पोरा देखने एक्सटर्नल अफेयर से जाएंगे तो उन्हीं की एक स्टैंडिंग कमेटी है. अब क्या है कि इंडियन डायस्पोरा की अगर हम कैटेगरी देखें तो जो POIs होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन एंड एंसेस्टर वाज इंडियन नेशनल एंड नाउ होल्ड्स द फॉरेन सिटीजनशिप. आपके पास पासपोर्ट सिटीजनशिप, आपके पास फॉरेन के, बस आपके कोई आपके एंसेस्टर या फिर आप खुद इंडियन नेशनल के थे कभी, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाता है. देन यू हैव ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI. ये रजिस्टर होते हैं अंडर द सेक्शन 7A इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955. यहाँ पे जो PIOs और OCI है वो मर्ज इनटू अ सिंगल OCI कैटेगरी इन 2025. उनको सिर्फ एक ही कैटेगरी में डाल दिया, OCI में, दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. नाउ देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. NRIs क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस. दीज आर द इंडियन सिटीजन्स जो कि रिसाइड इंडिया में नहीं करे, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट. ठीक है, देन यू हैव करंट स्टेटस. अगर हम देखें 2024 जनवरी में तो 35 मिलियन टोटल हमारे जो थे, मिलियंस हमारे थे आपके ये. ठीक है, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मेजर पॉपुलेशन हमारी US में है, देन UK, देन कनाडा, देन गल्फ कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड कैरेबियन. देन रेमिटेंसेस देखें तो हमारा रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा आता था वर्ल्ड का US से. ठीक है, नाउ इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडिया फॉर द इंडियन डायस्पोरा, प्रवासी भारतीय बीमा योजना.
2017 में आई थी। इसमें हमने क्या कहते हैं इंश्योरेंस देते थे 10 लाख रुपए का, अगर कोई भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, जिसके लिए हमने प्रीमियम क्या ₹275 लिया था फॉर 2 ईयर्स एंड 375 फॉर 3 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको 10 लाख रुपए इंश्योरेंस के मिल रहे थे। 2 साल में आपको 275 लेने थे, 3 साल में आपको 375 रुपये देने थे। और ये हमारी परवर्सी मतलब कि द पीपल लिविंग आउटसाइड इंडिया उनके लिए थी। और डिसेबिलिटी या फिर एक्सीडेंटल डेथ में नो इंडिया प्रोग्राम जो है ये 2003 में आया था। इसमें कहते हैं इंडियन डायस्पोरा इन द एज ऑफ 21 to 35 उनको फेमिलराइज कराना चाहते थे विद द कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम्स, विजिटिंग द एडवांस्ड जॉइंट्स रिसर्च, वज्र फैकल्टी स्कीम्स एंड अदर। ठीक है, वैभव और ये सब थी। अब परवसी भारतीय दिवस हमारा मनाया जाता है जनवरी 9 को, मार्क एज द डे ऑफ महात्मा गांधी रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। सो टू ऑनर दिस इवेंट PWD दैट इज परवसी भारतीय दिवस वॉज इनिशिएटेड इन 2000 टू सेलिब्रेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा। देन यू हैव इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, इसमें ये 2009 में आता है। दिस फंड इन द इंडियन मिशन ऑफ 17 immigration clearance required countries and Maldives to meet the contingency expenditure incurred by them for carrying out of various on-site welfare activities for the overseas Indian citizen under stress. ठीक है, then you have chemical weapon convention, organization for the prohibition of the chemical weapon convened the meeting in collaboration with the India's national authority। सी ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, प्रोहिबिट करने के लिए केमिकल वेपन्स को। उन्होंने कन्वे करा मीटिंग इन कोलैबोरेशन विद इंडिया नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, ये जो रीजनल मीटिंग होती है एज अ पार्ट ऑफ OPCW's ऑनगोइंग एफर्ट टू कि हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन का। सो OPCW एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो जाती है किसकी, CWC की। ठीक है, केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या है, 1992 में आई थी, एक ड्राफ्ट कन्वेंशन था, वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट एंड केम इनटू फोर्स इन 1997। इट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्ममेंट अग्रीमेंट टू प्रोवाइड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन। क्या बोला कि इन्होंने एक पहला ऐसा वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्ममेंट अग्रीमेंट था जो कि एलिमिनेशन ऑफ द एंटायर मतलब ऑल काइंड ऑफ एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विद इन द फिक्स टाइम फ्रेम। 193 इसकी पार्टी इंडिया साइन करता है ओरिजिनली द कन्वेंशन। OPCW was awarded Nobel Peace Prize in 2013. National Authority on Chemical Weapon Convention under the Cabinet Secretary is responsible for implementing the convention in India and NCW was established under this Convention Act only. ठीक है, सो 2024 में क्या होता है, जो ये इंडियन केमिकल काउंसिल होता है उनको अवार्ड दिया जाता है, OPCW हॉग अवार्ड दिया जाता है, मार्किंग द फर्स्ट टाइम केमिकल इंडस्ट्री बॉडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू रिसीव दिस ऑनर। ये पहली केमिकल ऐसी इंडस्ट्री है जिसको ये अवार्ड मिला है। द अवार्ड एक्नॉलेज द ICC's contribution to advancing the goal of convention and improving the industry wide safety and security practice in India. So ICC जो है इंडिया का ओल्डेस्ट केमिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन है। सो इट इज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ICC एक हमारी ऐसी है कंट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू रिसीव दिस ऑनर विच इज़ दिस ऑनर। ठीक है, ओके। अदर रीसेंट डेवलपमेंट, एक्सट्रेडिशन 26/11 वाला जो मुंबई टेरर अटैक होता है, एक्यूज एक्सट्रेडिशन टू इंडिया फ्रॉम द US। इन इंडिया एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 सब्सटेंशियली मॉडिफाइड 1993 कंसोलिडेट करती है कुछ कानूनों को जो कि आपके एक्सट्रेडिशन ऑफ द क्राइम फ्यूगिटिव्स से रिलेटेड होते हैं फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन स्टेट। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक नोडल अथॉरिटी होती है एक्सट्रेडिशन इन इंडिया के लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज द नोडल अथॉरिटी फॉर एक्सट्रेडिशन इन इंडिया। इंडिया जो है हैज़ एक्सट्रेडिशन ट्रिटीज़ विद 48 नेशंस इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड US। ठीक है, सो हमारे 48 नेशंस के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रिटी साइन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशियली फाइनली डिसाइड करते हैं एक्सट्रेडिशन एंड इट्स डिसीजन कैन बी अपील्ड इन हायर कोर्ट। इसके जो अपील है वो हायर कोर्ट में जा सकती है। यूनाइटेड नेशन मॉडल ट्रिटी ऑन एक्सट्रेडिशन 1990, यूनाइटेड नेशन मॉडल ऑन एक्सट्रेडिशन 2004, ऑल्सो कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल हमने देखा था 2002 एक्सेट्रा। ये कुछ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो डील करते हैं प्रिंसिपली फॉर of extradition. Then you know the extradition principle में कहता है reciprocity, encourage the mutual cooperation between the state for the extradition. mutual cooperation की बात करी जाती है। double criminality में क्या होता है, require the act to be crime in both the jurisdiction. double jeopardy prevent the extradition for already punished. so double criminality में क्या होता है कि it requires
द एक्ट टू बी क्राइम इन बोथ द जुरिडिक्शंस, दोनों ही जगह पे वो क्राइम होना चाहिए। डबल जियोपेरिडी में क्या होता है, प्रिवेंशन एक्सट्रेडिशन फॉर ऑलरेडी पनिश्ड ए क्राइम, जहाँ पे ऑलरेडी पनिश हो चुका है वहाँ पे डबल जियोपेरिडी नहीं होनी चाहिए कि आप भी पनिश करो वो भी पनिश कर रहे हैं। एंड देन यू हैव डबल जियोपेरिडी होगी, स्पेशलिटी लिमिट प्रोसिक्यूशंस टू स्पेसिफाइड ऑफेंस इन एक्सट्रेडिशन, ठीक है। फेयर ट्रायल इंश्योर जस्ट एंड इम्पार्शियल लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब फेयर ट्रायल्स होने चाहिए। ई पासपोर्ट में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रोल्ड आउट अ ई पासपोर्ट एंड पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0। इसमें क्या है कि हमारा जो एक ई पासपोर्ट इज कंबाइंड पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट विद अ रेडियो फ्रीक्वेंसी identification chip and an antenna embedded on the inlay of the passport that contains the personal particulars and biometric information of the, सब होता है इसमें, ठीक है। आपके बायोमेट्रिक्स भी होता है, एंटीना भी चिप होते हैं, सब होते हैं, RFDI हमारा होता है, ठीक है। सो द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं सिक्योरिटी ऑफ द ई पासपोर्ट इन द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशंस। ई पासपोर्ट सेफगार्ड करेगा पासपोर्ट फ्रॉम द फ्रॉडरी, मतलब कोई यूज़ ना कर ले फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ लाइक फेक पासपोर्ट वाइल कन्फर्मिंग द जेन्युइननेस एट द बॉर्डर कंट्रोल, ओके। कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यूनियन मिनिस्ट्री सेड दैट KMTPP जो है हमारा कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विल बी ऑपरेशनल बाय 2027 में हमारा हो जाएगा एंड जॉइंटली आइडेंटिफाइड बाय द इंडिया एंड म्यांमार। इट ऑफर्स मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो फ्रॉम ईस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया टू म्यांमार एंड टू इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू म्यांमार, ठीक है। ये 2008 में साइन हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देखते हैं, नॉर्दर्न मिनिस्ट्री हमारी जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट कंसल्टेशन इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये हमारी है ट्रांजिट कंपोनेंट वाटरवे कंपोनेंट ऑन कालाधन रिवर विद सितवे हमारा राखीगिरी म्यांमार में आ जाता है एंड योर पाल्टवा इन म्यांमार, ठीक है। सो ये कालाधन रिवर के थ्रू जाता है एंड यू हैव रोड कंपोनेंट्स जहाँ पार्टवे तो जोरिनपुई मिजोरम तक आता है, ठीक है। ओके, अदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफ NER इज दैट इंडिया म्यांमार हमारा थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है एंड मोहे इन मणिपुर टू मोए सो, ठीक है। मोए मणिपुर से लेके मोए सो थाईलैंड बाय म्यांमार, ठीक है। देन यू हैव प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश अलाउिंग इनलैंड वेसल्स एंड क्रूज ऑफ अ कंट्री टू अप्लाई ऑन द डेजिग्नेटेड, ठीक है। BBNI हमारा मोटर व्हीकल अग्रीमेंट MOU यूज द चटगांव एंड मोंगला पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। देन यू हैव शांगला डायलॉग, ये एनुअल डायलॉग हुआ है हेल्ड इन वेयर सिंगापुर एंड जेनेसिस इंस्पायर्ड द पोस्ट कोल्ड वॉर मल्टीलेटरलिज्म एंड ये हमारा तब आया था 9/11 अटैक के बाद फलाना ढमकाना। इट हैज़ एन होटल आफ्टर दिस होटल, इसका नाम पड़ा है। ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ लंडन एंड विल सपोर्ट द सिंगापुर गवर्नमेंट, बस इतना ही है। देन ये ओटावा कन्वेंशन हमारा जो है फिनलैंड का जो पार्लियामेंट है उसने अप्रूव करा है विड्रॉल ऑफ द ओटावा कन्वेंशन और द एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन। अर्लियर जो हमारे कंट्रीज थी इस्तोनिया, लुथानिया, लातविया, पोलैंड ऑल्सो अनाउंस कि ये विड्रॉ करेंगे स्टेटस है, बट अर्लियर इन्होंने अनाउंस करा था कि ये विड्रॉ करेंगे। concluded by the diplomatic conference on international total ban on anti-personal land mines at Oslo 1997। ये बस हमें इतना याद रखना है, इट इज़ अबाउट योर कि पर्सनल माइन बैन है और इसमें क्या है कि मेंबरशिप 165 कंट्रीज हैज जॉइन द ट्रीटी एंड इंडिया इज नॉट वन ऑफ देम। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट टू इट। देन यू हैव सेलेवा फोरम ऑन डेट। द फोरम इज लॉन्च एट द 16th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, UNTAD का 16th सेशन में हुआ है। टैकल करना है एंट्रिच डेट क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो हमारे डेट क्राइसिस हो रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। सेलेवा फोरम ऑन डेट, ठीक है। And then you have this, it is led by Spain and supported by UNTAD and United Nations Development on Economic DESA, Development of Economic and Social Affairs, ठीक है। ये ब्रिंग आउट करेगा क्या टुगेदर जितने भी स्टेक होल्डर, क्रेडिटर्स है, बोरोवर्स है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अकेडमियाज है, जो कि किसके लिए, डेट सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट एंड इनोवेशन के लिए। एंड इट इज़ वन ऑफ द आउटकम ऑफ द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फाइनेंस डेवलपमेंट FFD4 and a part of Celeva platform for action, ठीक है। Now there are 3 outcomes of the debt swap for development funds, debt for development swap program, debt for pause clause alliances. This initiative will complement the Celeva commitment, and Celeva commitment lays out the path to close the $4 trillion annual SDG finance gap in the developing countries. It is the first intergovernmental agreement financing for the development framework since 2015. Let's see the next one now. अब क्या है,
प्लूटिनम मैनेजमेंट एंड डिपोजिशन अग्रीमेंट, ये प्लूटिनम से रिलेटेड है। रशिया लोअर हाउस अप्रूव विड्रॉल फ्रॉम द प्लूटिनम मैनेजमेंट डिपोजिशन। इसने बोला कि जो यूएस के साथ मेरा ये अग्रीमेंट है, इससे मैं निकल रहा हूँ। प्रीवियसली क्या था, जो रशिया था 2016 में सस्पेंड करता इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट का, जो कि यूएस ने सैंक्शन लगाते थे उसके बाद। तो अग्रीमेंट जो है साइन हुआ था 2000 में, कमिट करते हैं यूएस एंड रशिया टू कि इरिवर्सिबल डिस्पोज करेंगे तो एटलीस्ट 34 मेट्रिक टन ऑफ द वेपन ग्रेडेड प्लूटिनम। प्लूटिनम एटॉमिक नंबर हमारा 94 होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होता है। एंड डिपोजिशनल गोल क्या है कि कन्वर्ट करना है प्लूटिनम इनटू अ सेफर मोड, दैट इज MOX फ्यूल और द रिएक्टर रेडिएशंस। देन यू हैव ड्रिजुबा पाइपलाइन, ये क्या है, यूक्रेन की अटैक करा है रशिया की ऑयल फ्लो टू हंगरी सोल्वेस क्या। इसमें क्या, ये हमारी फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी, बिगेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क था इन वर्ल्ड में। और ये ड्रिजुबा पाइपलाइन बिगिन होती थी रशिया से, ट्रांसपोर्ट करती ऑयल थ्रू द बल्गारिस यूक्रेन टू स्लोवाकिया एंड हंगरी, ठीक है, यहाँ तक जाती थी। दिस इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अब है पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन। रशिया एंड चाइना साइन करते हैं लीगली बाइंडिंग डील टू बिल्ड दी पावर ऑफ साइबेरिया POS2 गैस पाइपलाइन। ये हमारी जो है, इसको हम एल्टाई पाइपलाइन भी बोलते हैं। इट विल ट्रांजिट द गैस रिजर्व्स इन रशिया वेस्ट साइबेरिया to the North China via Eastern Mongolia. It aims to increase the supplies via the existing power of Siberia pipelines which run through from the Eastern Siberia to China. आवाज़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2024-2034 आता है। थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज LLDC3 ओपन इन आवाज़ा तुर्कमेनिस्तान। कॉन्फ्रेंस जो है serve as a crucial platform to implement the newly adopted POPA, ठीक है, adopted by the consensus at United Nations General Assembly in this आया था। ऑफर करते कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ताकि हम टैकल कर सके परसिस्टेंट डेवलपमेंट चैलेंज जो हमारे LLDC में हो रहे हैं, दैट इज लैंड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में जो भी हमारे इशूज़ हो रहे हैं। सो इट्स बेसिकली अबाउट LLDC3 आवाज़ा प्रोग्राम है, ठीक है। एंड ये हमारे UNGA में हमारा 2024 में एक्सेप्ट हुआ था। इटैब्लिश करना है एक रीजनल एग्रीकल्चर हब ताकि हम स्ट्रेंथन कर सकें फूड सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हब फॉर द फूड सिक्योरिटी। देन यू हैव टू लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटी टू मोबिलाइज द क्रिटिकल फंडिंग एंड डेवलप अ UNFCCC नेगोशिएशन बॉडी टू अवॉइड द ट्रेड एंड क्लाइमेट रेजिलियंस एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। हमें देखना है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का। डिस्पाइट द एम्बिशियस गोल, द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट चैलेंज इन अफ्रीका चल ही रहा है, ठीक है। सो इट्स इन 2007 अफ्रीका यूनियन ने लॉन्च करा था ये। हमने क्या करना है, 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द करंटली डिग्रेडेड लैंड जो है उसको रिस्टोर करना है। सो 100 मिलियन हेक्टेयर करंटली डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है एक। देन यू हैव टू सिक्वेंस 250 मिलियन टन्स ऑफ द कार्बन एंड क्रिएट 10 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन जॉब बाय 2030 तक का टारगेट है। 100 मिलियन हेक्टेयर टन्स फॉर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है, 250 मिलियन टन्स ऑफ द कार्बन लेकर के क्रिएट करना है 10 मिलियन ग्रीन जॉब्स, ठीक है। एम ये है कि अमाउंट ऑफ द एरेबल लैंड इन द सहेल रीजन, द रीजन बॉर्डरिंग द अफ्रीका सहारा डेजर्ट, इसमें हमारा है। तो यहाँ पे लेट्स सी विच ऑल कंट्रीज आर हियर इन द सहेल रीजन। यू सी सेनेगल, देन यू सी मारूथियाना व्हाटएवर, माली, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, Ethiopia, Argentina, Djibouti. Then you have this also, Mauritania, Mali, 2M, Niger, Nigeria, 2, Sudan, Ethiopia, E2, Sudan, and then you have this Ethiopia, Chad, Burkina Faso, you have S2. ठीक है, you have Chad, CB, BCD, ठीक है। 2M, 2N, 2E, 2S, and then you BCD. These are your countries. How many? 2 to 4 to 6 to 7, 8, 9, 10, 11 countries है। ओके, चलो नेक्स्ट। ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है, ये फोकल रीजन में नहीं आते। दीज डज नॉट कम इन द फोकल रीजन, मतलब 9 हमारी कंट्रीज आती हैं +2, 9 + 2, ठीक है। आओ
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 नाइन्थ एडिशन हुआ है एंड हैज़ बिन रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस। ये यहाँ पे क्या होता है, इसमें 163 इंडिपेंडेंट कंट्री स्टेट टेरिटरीज आती हैं, यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स अक्रॉस 3 डोमेन्स, लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन, रैंकिंग होते हैं। आइसलैंड जो है हमारा फर्स्ट नंबर पे आया, इंडिया जो 115 नंबर पे, रशिया 163 नंबर पे था एंड लीस्ट पीसफुल कंट्री बताई गई है। एंड दिस जो ये पीसफुल इंडेक्स है ये हमारा रिलीज कौन करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इंडिया ने हेनलेज पासपोर्ट में जंप कर दिया फ्रॉम 85 to 77 विच इज़ गुड। सो इंडियन सिटीजन कैन नाउ ट्रैवल टू 59 डेस्टिनेशन विदाउट नीडिंग टू सिक्योर अ वीज़ा बिफोर हैंड। सो ऑन अराइवल वीज़ा हमारा 59 डेस्टिनेशन पर लगता है। एंड हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है, बेस्ड ऑन द एक्सक्लूसिव डेटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA से डेटा लेता है। एंड सिंगापुर जो है होल्ड करता है द टॉप स्पॉट इन द इंडेक्स, ठीक है, एंड इट्स होल्डिंग दिस स्पॉट फॉर सिंस अ व्हाइल। तो आओ नेक्स्ट पे, इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी, द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA। तो ये जो एक्ट है हैज़ एक्सटेंडेड 6 months इन सर्टेन एरियाज ऑफ मणिपुर, ठीक है, 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो गई थी मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, टू एड्रेस द इंसर्जेंसी एंड मेंटेन ऑर्डर अमिड द एथनिक वायलेंस। ये जो एक्ट 1958 में आई थी, एक स्पेशल लॉ बनाया गया था जो कि ग्रांट करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आपके मिलिट्री को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू द मिलिट्री टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा पावर दी गई थी मिलिट्री को। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो आर्म फोर्सेज है उनको स्ट्रेंथन करे, एम्पावर करे, ताकि वो ऑपरेट कर सके डिस्टर्ब एरियाज में विद द पब्लिक ऑर्डर इज सीरियसली थ्रेटन। सो करंटली जो हमारे AFSPA है इज इनइफेक्टिव इन पार्ट ऑफ दी, आपका कहाँ पे, नागालैंड, असम एंड मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे ये हमारी लगती है। इट वॉज लिफ्टेड फ्रॉम त्रिपुरा में 2015 में निकल गई थी, मेघालय में 2018 में हटा दी गई थी और मिजोरम में सबसे पहले 1980 में हटा दी गई थी। AFSPA जो है रिमेन इन द फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू दी, इनका एक अलग से एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, बट इट इज़ ऑल्सो देयर। डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया जो है गवर्नर करेगा, कौन बताएगा ये डिस्टर्ब एरिया है, तो इट विल डिस्टर्ब एरिया का जो डिक्लेरेशन है डिस्टर्ब एरिया वो गवर्नर देता है, एडमिनिस्ट्रेटर देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, डिक्लेयर करते हैं कि ये जो पार्ट है होल पार्ट, ये पूरी ही स्टेट जो है वो डिस्टर्ब्ड है एंड दे बिलीव द सिचुएशन रिक्वायर द आर्म फोर्स, कि अब वो सिचुएशन आ चुके हैं वेयर यू एट द अथॉरिटी सिविल अथॉरिटीज़। स्पेशल पावर ऑफ द आर्म्ड फोर्स सेक्शन 4 ग्रांट करता है स्पेशल पावर टू द आर्म फोर्स पर्सनल इन डिक्लेयरिंग एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया में अलग से पावर दी जाती है। फोर्स जो है इंक्लूडिंग द शूटिंग टू किल, आप गोली मार के हत्या कर सकते हो अगेंस्ट anyone violating the law, then you arrest and enter such premises without warrant आप सस्पेंशन के बेसिस पे भी, सस्पिशियस के बेसिस पे भी आप जा सकते हो, सर्च कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। प्रोहिबिट करती है असेंबली ऑफ 5 पीपल, 5 and 5+ मतलब कर्फ्यू लग जाता है। डिस्ट्रॉय करती है एनी आर्म एंड डम फोर्टिफाइड पोजीशन विच आर आर्म्ड अटैक्ड एंड कैन बी मेड एनी ट्रेनिंग कैंप फॉर द आर्म्ड वॉलंटियर्स, ठीक है, कोई भी किसी को भी आप ट्रेनिंग कैंप बना सकते हो। इम्यूनिटी टू आर्म्ड फोर्स पर्सनल सेक्शन 6 प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स फॉर एक्ट अंडर AFSPA विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन, ठीक है, इम्यूनिटी दी गई है उन पर्सनल्स को विदाउट द गवर्नमेंट कोई सैंक्शन ना लगाए उनके जो एक्ट वो करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ द लॉ। देन यू हैव द ट्रीटमेंट टू ऑफ अरेस्ट द पीपल, आर्म फोर्स रिक्वायर टू हैंड ओवर द पर्सन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके दे दो विद द लीस्ट पॉसिबल डिले, ठीक है। नाउ जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी आई थी, इसने क्या बोला था, रिपील कर दो इस एक्ट को, अमेंड करा गया, अमेंडेड द UAPA एक्ट इन दिस टू इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ AFSPA स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ओके, नाउ कमिंग टू द crime, cybercrime in India. A parliamentary panel on home affairs presented a report titled the cybercrime ramification protection and prevention, highlighted the evolution and growing complexity of the cyber threat in India, ठीक है। फर्स्ट हमारा आता है पिग butchering. So it is a sophisticated scam that blends the romance scams with investment frauds and particularly targeting the cryptocurrency investment. So ये romance scam है with an investment fraud जिसमें आपका cryptocurrency investment ली जाती है। Then you have the scam names after reflects the process of flattening the victim with the trust before slaughtering, ठीक है, before slaughtering them financially. Then you have phantom hacking में क्या होता है कि it's referred to as phantom hackers scam and it is an evolution of the tech supported scams particularly targeting the vulnerable और senior citizens को, ठीक है। Juice jacking में क्या होता है, it is a type of cyber attack when the public USB charge port are used to steal the data from the internal installing the malware on the device में malware device इंस्टॉल हो जाता है, steal करता है डेटा, क्यों, क्योंकि आपने public USB charging point यूज़ करा था।
ओके, क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक इन विच द साइबर क्रिमिनल्स हाईजैक द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑफ द विक्टिम्स डिवाइस इन ऑर्डर टू माइन द क्रिप्टो करेंसी विदाउट परमिशन। ये एक साइबर क्राइम है जहाँ पे आपकी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, हाईजैक कर लिया जाता है, वहाँ से आप माइनिंग कराते हैं किसकी? क्रिप्टो करेंसी विदाउट परमिशन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टैकल करने के लिए क्या है? एक तो लीगल फ्रेमवर्क है, एनसीआरबी जो है वो कैटेगराइज करते हैं साइबर ऑफेंसेस को अंडर आईटी एक्ट, ठीक है, हमारे आईटी एक्ट 2000 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस पॉलिसी के अंडर एंड स्पेशल एंड लोकल लॉज, ठीक है। आईटी एक्ट जो है वो हमारे 69 ब्लॉकिंग information access, 79 है intermediary liabilities and safe harbor, 70B is stir in. Then you have agencies and institution, 14C 2020 in national coordination hub है ऑपरेटिंग ऑन 1930 हेल्पलाइन एंड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है। स्टर्न जो है हमारा वो मैनेज करता है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड एडवाइजरीज। देन यू हैव NCIIP जो प्रोटेक्ट करता है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन यू हैव CBI एंड NIA जो हैंडल करता है साइबर फ्रॉड्स को एंड टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स को, ठीक है। ऑपरेशन चक्र जो है हमारा डार्क वेब के लिए, जो फ्रॉड के लिए हमने ऑपरेट कराया था। देन यू हैव स्टेट इनिशिएटिव, जैसे केरला में हमारे पास साइबर डॉम है, यू हैव महाराष्ट्र में लेड अ साइबर लैब एंड फॉरेंसिक्स। डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है कि नीति आयोग ने पब्लिश करा था एक आर्टिकल, डिजिटल अरेस्ट द मॉडर्न डे साइबर क्राइम। इट इज़ अ स्कैम जो कि डिज़ाइन करा जाता है टू एक्सॉर्ट द मनी फ्रॉम द विक्टिम यूजिंग द फियर, डिसीट एंड इंटिमिडेशंस। सो मेथड क्या रहता है कि जो विक्टिम है वो फोन कॉल आएगी या ईमेल आएगा, मैसेज आएगा क्लेमिंग दैट यू आर अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर इलीगल एक्टिविटीज़, और उससे क्या होता है, सच आइडेंटिटी थेफ्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग हैपेंस। I4C क्या है? रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उन्होंने एक नोटिस इशू करा था कि जिसमें हमारा जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है अंडर द सेक्शन 66 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उनको इट वुड हेल्प I4C टू शेयर एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन। वो क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कहाँ से? ED से एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सो दैट वो स्ट्रेंथन कर सके कंट्री का फाइट अगेंस्ट द साइबर एनेबल फाइनेंशियल क्राइम्स। सेक्शन 66 डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ PMLA एक्ट 2002 में क्या होता है कि एनेबल करती है डायरेक्टर्स को, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम टू शेयर द इन्फॉर्मेशन विद द कंसर्न एजेंसी, कि आप जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो कंसर्न एजेंसी के साथ। शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द मटीरियल इन हिज पोजेशन एंड दैट द प्रोविजन of any other law for the time being in force are contravened, ठीक है। so that the provision of any other law for the time being in force are contravened, ठीक है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में क्या होता है? ऑफिशियली इनॉग्रेटेड इन 2020। इट इज़ एन इनिशिएटिव जो कि यूनाइटेड नेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर लेकर के आया था, 2020 से है, होम अफेयर मिनिस्ट्री लेकर के आती है, ताकि एक नोडल पॉइंट हो सके जहाँ से हम साइबर क्राइम को कर्ब कर सकें। जुलाई 2024 में इट वॉज मेड एन अटैच ऑफिस ऑन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क एंड इकोसिस्टम फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फॉर डीलिंग विद द साइबर क्राइम इन कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। वर्टिकल I4C क्या है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। देन यू हैव ऑल्सो थ्रेट एनालिटिक्स, देन यू हैव साइबर इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, यू ऑल्सो हैव जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम, ये सब हमारे इसमें आ जाते हैं। सो बेसिकली होम अफेयर मिनिस्ट्री का है, 2020 से है कर्व करने के लिए साइबर क्राइम्स। ओके, दिस ऑल्सो हैपन कि इसमें आपके पास यू हैव द परमिशन, द EDs एंड द डायरेक्टर्स जो है PMLA एक्ट के अंदर आपके पास प्रोविजन होता है दैट यू कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन विद द कंसर्न एजेंसी इफ नेसेसरी, ठीक है, व्हेन नेसेसरी एक्शन अबाउट टू बी टेकन। डिजिटल अरेस्ट स्कैम हमारे नीति आयोग के एक पब्लिश करा था आर्टिकल, जिसमें बताया गया था कि स्कैम क्यों हो रहे हैं, कि मनी को एक्सॉर्ट करना चाहता है फियर, डिसीट एंड इंटिमिडेशन के थ्रू। Also then okay, you got to know the pig bluchering में क्या होता है? आपको फ्लैटन करा जाता है, रोमांस स्कैम होता है, इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट आपसे खसूटी जाती है। देन यू फैंटम हाईजैकिंग, मतलब क्या हाईजैक कर लिया जाता है इनको, बेसिकली वनरेबल एंड सीनियर सिटीजन्स को। जूस जैकिंग में क्या होता है? आप जब आप USB पोर्ट्स जो हमारे पब्लिक वाले आप उनको यूज़ करते हो तो उससे आपका डेटा फेच कर लिया जाता है। देन देयर इज अ क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग में कहता है यू हाईजैक द समबडीज कंप्यूटर एंड द माइन द क्रिप्टो करेंसी विदाउट देयर परमिशन, इट्स नॉट क्रिप्टो जैकिंग। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, क्या कन्वेंशन है? रिसेंटली 72 आउट ऑफ 193 मेंबर स्टेट जो है उन्होंने साइन करे थे एक कन्वेंशन जो कि यूनाइटेड नेशन के साइबर क्राइम इन हनोई वियतनाम, ठीक है। जो ये कन्वेंशन है वो अडैप्ट करी गई थी जनरल असेंबली के थ्रू ऑन 2024, ठीक है।
इट विल एंटर इनटू फोर्स 90 डे आफ्टर द 40th स्टेट डिपोजिट ठीक है 40th स्टेट डिपोजिट कर देते हैं अपना रेटिफिकेशन, तब से उसके बाद 90 दिन में ये आ जाएगी इन एक्शन, ठीक है। द साइनिंग प्रोसेस विल रिमेन ओपन टिल 2026 ऑफ दिसंबर। सो अभी ये है ही नहीं रिलेवेंस में, बस इतना जान लो। सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट नाउ। यूनियन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ये सर्व करते हैं सेक्रेटरी फॉर द नेगोशिएशन, ठीक है। यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम ये फर्स्ट यूनिवर्सल लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क होगा जो कि कलेक्ट करेगा, शेयर करेगा, यूज़ करेगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस फॉर ऑल द सीरियस ऑफेंसेस। सो ये जो होने वाला है ये इसकी बात हो रही है, ठीक है, अगेंस्ट द क्राइम। ओके, बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम 2011 में आया था, ड्राफ्ट करता काउंसिल ऑफ यूरोप के थ्रू, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो फोकस करती कॉम्बैक्टिंग द साइबर क्राइम, स्ट्रेंथन करती क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशंस को। नंबर ऑफ स्टेट जैसे रशिया, चाइना है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था बुडापेस्ट कन्वेंशन एंड हैव लॉन्ग एडवोकेटेड अ न्यू इंटरनेशनल साइबर क्राइम कन्वेंशन। उसके बाद बुडापेस्ट कन्वेंशन के बाद जो है हमारी ये आती है अभी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट आपका साइबर क्राइम, ठीक है, विच विल बी इन फोर्स व्हेन द 40th कंट्री विल साइन इट। नाउ कमिंग टू दिस की फीचर ऑफ द कन्वेंशन अगेंस्ट क्राइम क्या होता है? एक्सपैंड करो स्कोप को, इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ाओ, सोवरेनिटी प्रोटेक्शन करो, एंड देन यू हैव विक्टिम सपोर्ट, देन यू हैव ह्यूमन राइट्स। मिशन सुदर्शन चक्र, ये मेरे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा था, मिशन सुदर्शन चक्र 79th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के टाइम में। मोर ऑन द न्यूज़ क्या है? जो ये मिशन था, सीक्स टू डेवलप द एयर डिफेंस सिस्टम एम्ड एट न्यूट्रलाइजिंग द एनिमी डिफेंस इनफिल्ट्रेशन एंड एनहांसिंग द इंडियाज ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, कि हम सामने से अटैक करेंगे, जो डिफेंस हो रहा है उनको जो भी हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड विल अटैक। अब एडिशनली क्या है, जो इंडियन एयरफोर्स है उसने प्रेजेंट इज प्रेसिंग फॉर द रैपिड प्रोग्रेस इन दी प्रोजेक्ट कुशा को बढ़ाना चाह रहे हैं। एक ये इंडिजिनियस इनिशिएटिव पर DRDO लेड कर रहे हैं टू डेवलप अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। सुदर्शन चक्र मिशन जो है इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया डिटरेंट एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करे, स्ट्रेंथन करे, मॉडर्नाइज करे, नेशनल सिक्योरिटी शील्ड करे। इट विल बी अ पार्ट ऑफ मल्टी लेयर मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका टाइम लाइन क्या है कि ये मिशन हमारा 2035 तक हमें कंप्लीट करना है एंड इट विल सेफगार्ड द इंडिया स्ट्रेटेजिक सिविलियन एंड रिलीजियस साइट्स एंड एसेट्स, ठीक है। और ये कवर करके जितने भी पब्लिक प्लेसेस, ऑल द पब्लिक प्लेसेस विद एक्सपैंड द नेशन वाइड सिक्योरिटी, शील्डिंग द अक्रॉस एयर इंडिया सी, एयर, लैंड एंड सी, सब कुछ, and all the public places. ये mission will integrate the advanced surveillance, cyber protections and physical infrastructure and this and that, and it will be a system for targeting the precise actions. Indigenous technology, it will be entirely researched, developed and manufacturing in India. सब completely ये इंडिया में होगा, indigenous technology है। So बस हमें ये याद रखना, अब ये होना है, this is a proposed mission, ठीक है। So 2035 तक हमने ये चीज़ें करनी है, पर ये है किस चीज़ से रिलेटेड वो जाना ज़रूरी है कि it is about your defense system, multi-layer missile defense system, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट कुशा है जो कि हमारा DRDO लेड कर रहा है फॉर व्हाट, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस, एयर डिफेंस के लिए, ठीक है, एयरफोर्स के लिए, ठीक है। एंड देन यू हैव दिस मिशन सुदर्शन चक्र, ठीक है। अब है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, BWC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन डिसआर्ममेंट अफेयर्स जो है उन्होंने 50th एनिवर्सरी बनाई है बायोलॉजिकल कन्वेंशन की। सो फॉर्मली ये जो कन्वेंशन थी ऑन द, इसको बोला जाता था कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग ऑफ द बैक्टीरियोलॉजिकल, दैट इज बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। बायोलॉजिकल वेपन ये कौन से होते हैं? जो वेपन डिसमिनेट करते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पायरेंस, रिकेस्टे, और टॉक्सिन्स जैसे पॉइजन होता है डराइव फ्रॉम द एनिमल, प्लांट ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड टू हार्म और किल द ह्यूमंस, एनिमल एंड प्लांट। जो वेपन बायोलॉजिकल चीज़ें ऑर्गेनिजम्स को या फिर टॉक्सिन्स को यूज़ करते हैं, टॉक्सिन्स मेड डराइव फ्रॉम द एनिमल और प्लांट, उनको टू किल द ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल्स। अगेन द जो हिस्ट्री बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम है हिस्टोरिकली हैव इंक्लूडेड द एफर्ट टू प्रोड्यूस दी सी, इतना कुछ, ठीक है। ये सब हमारा प्रोड्यूस हो रहा था, हटाओ यहाँ पे। जेनेसिस क्या है? नेगोशिएट करा है जेनेवा, स्विट्जरलैंड विद इन द 18 नेशन कमिटी ऑन डिसआर्ममेंट, ENDC, कॉन्फ्रेंस ऑन द कमिटी ऑन डिसआर्ममेंट, फलाना ढिमकाना, हटाओ। साइन हो गया, ये हो गया, ठीक है। मेंबरशिप क्या है? सारे यूनिवर्सल मेंबरशिप है, 188 स्टेट पार्टीज है। इंडिया इज ऑल्सो रेटिफाइड इन 1975। 4 सिग्नेटरी स्टेट है जो कि इजिप्ट, हैती, सोमालिया, सीरिया, अरब रिपब्लिक। स्टेट पार्टीज मीट अप्रॉक्सीमेटली एवरी 5 साल में मिलने के लिए बोलते हैं। स्टेट पार्टीज ये जो है स्ट्राइव करती है इंश्योर करें कि कन्वेंशन जो है रिमेन रेलिवेंट एंड दिस एंड दैट। ओके, की फैक्ट अबाउट WC इज ये फर्स्ट मल्टीलेटरल जो है डिसआर्ममेंट ट्रीटी थी जो बैन करी थी एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सो इट वॉज द फर्स्ट
multilateral disarmament treaty जो बैन कर रही थी entirety of the weapon of mass destruction. Then you have effectively prohibit the development, production, acquisition, transfer, stockpile and use of the biological and toxic weapons. Supplement करते हैं 1925 Geneva Protocol को, which had prohibited only the use of the biological. See, Geneva Protocol में क्या होता है कि सिर्फ आपका यूज़ होता है बायोलॉजिकल वेपन यूज़ पे आप कर रहे होते हैं. यहाँ पे स्टॉक पाइलिंग, एक्विजिशन, यहाँ पे सब कुछ देखा गया है. प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग, सब कुछ यूज़. इम्प्लीमेंट सपोर्ट यूनिट क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू meeting agreed by the review and this and that. 5 states, Israel, Chan, Djibouti, Eritrea, Kiribati, have neither signed nor accepted the convention. Measure taken by the government to implement the BWC is that hazardous microorganism rule 19. ये regulate करते हैं manufacturing, use and import, export, storages.